Yes, students. Today's topic is there a way one can grow more from the same land? एक ही लैंड से क्या ज्यादा क्रॉप्स उगाया जा सकता है? Is it possible? Yes or no? You send me the answer. Yes, Divyansi, correct answer you have sent. Very good. You have sent that yes. Okay. So all of you get ready for understand how we can get more crops in fixed land in one piece of land. There is a method by using that we can get more than one crop. So let's start the story. In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state Uttar Pradesh. विलेज पालमपुर में जो फसल उगाई जाती है और जो वहाँ सुविधाएं मौजूद है उसके हिसाब से ये उत्तर प्रदेश के एक गांव के से मिलता जुलता है स्टेट से. ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर. जितना जमीन है पालमपुर में उसमें सब में खेती होती है. नो लैंड इज लेफ्ट आइडल. ऐसे ही पड़ती कोई भी जमीन छोड़ा हुआ नहीं है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. ऑलरेडी आई हैव रिटन द वर्ड. इट इज व्हाट? Kharif crop. Simply, it is regional language in India. The crop which is grown in rainy season. Okay, the crop which is grown in rainy season in regional language it is known as kharif. Kharif. What is the real name? Kharif. याद रहेगा. जो बारिश के समय में उपजाया जाता है, जो फसल लगाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? खरीफ. 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 खरीफ कोई मत बोलिएगा. Is it खरीफ? Yes. खरीफ. Okay, during rainy season starts from these 3 months are considered as rainy season. इसी 3 महीने को ना हम लोग rainy season बोलते हैं. Yes, ma'am. In this region, the farmers of Palampur grow which crops? Which crops they grow? ज्वार and bajra. Jowar and bajra. Jowar and Bajra. Jowar and bajra. Have you heard the name of these crops? ज्वार एंड बाजरा. आपने इसको नाम सुना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ज्वार एंड बाजरा. Yes. So keep the things in the mind that people of Palampur, farmers of Palampur grow ज्वार and bajra in which season? Rainy season. Rainy season. And the crops which is grown in rainy season is known as? Kharif crop. Again kharif you said. Sorry, ma'am. Kharif crop. खरीफ. ओके, खरीफ हो गया. तो वो लोग पालमपुर में बारिश के मौसम में ज्वार और बाजरा उपजाते हैं. ज्वार और बाजरा कौन सी फसल में आई? तो खरीफ फसल में. खरीफ फसल कौन सी है? जो बारिश के मौसम में जुलाई टू सितंबर में बोई जाती है, लगाई जाती है. तो पालमपुर में ये ज्वार बाजरा लगाया जाता है. खरीफ फसल वहां का क्या है? ज्वार एंड बाजरा. ओके, these plants are used as the cattle feed. ज्वार और बाजरा को वहां किस लिए उपजाया जाता है? कैटल फीड के लिए. पशु चारा. क्या है कैटल फीड? मतलब पशुओं को खिलाने के लिए.
पशु चारा के लिए जो होता है चारा पशुओं को दिया जाता है, उसके लिए ज्वार और बाजरा उपजाया जाता है। ओके, it is followed by cultivation of potato between October and December. Okay, अक्टूबर, इसके बाद जो अक्टूबर होता है, अक्टूबर और दिसंबर में क्या लगाई जाती है? Which crop is grown? पोटैटो पोटैटो। अक्टूबर और दिसंबर में लगा दिया जाता है पोटैटो। अब वही विंटर सीजन में ही, उसी सीजन में जो एक और आया, इन द विंटर सीजन, उसी सीजन में फील्ड्स आर सोन विथ व्हीट। दिसंबर से शुरू होता है ना, यस मैम। दिसंबर जनवरी फरवरी तक। अभी जो चल रहा है, अभी कट गया, बहुत जगह ये फसल कट गई है। इन द विंटर सीजन रबी, ओके, फील्ड्स आर सोन विथ व्हीट। रबी कौन कौन सा मंथ हो गया? विंटर सीजन। विंटर सीजन कौन सा हुआ है? रबी। दिसंबर जनवरी और दिसंबर जनवरी फरवरी हाँ? फरवरी फरवरी। इसमें ये लोग क्या लग, इनका मतलब रबी क्रॉप से यहाँ पर क्या है? कौन सा फसल लग रहा? व्हीट। व्हीट, यहाँ पे व्हीट उपजाया जा रहा है। इज इट करेक्ट क्लास? तो हाउ मेनी क्रॉप्स आर ग्रोन इन पालमपुर in just one piece of land? The farmers of Palampur grow how many types of crops? You can tell me once again, you can repeat. Ma'am, 2 types of crop, Kharif types. and Rabi. And what's about potato? Ma'am, Huh? ma'am, potato bhi, means potato. Yes, potato is one more type. Rabi and Kharif is okay, but also one crop grown in Palampur, that is potato, the crop of potato. Potato भी ये लोग उपजाते हैं. So how many crops are grown? Yes, Sonali. Correct. So Sonali has sent the answer 3 types. Okay. Jowar and bajra in Kharif season, in Kharif crops, in rainy season, potato this October and December. Okay, and then they grow wheat in winter season. Okay, from the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption. It means the production of wheat is very good in Palampur village. Okay, so farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. The nearby market for selling crops in Palampur is रायगंज। Raiganj. So the people, the farmers, yes, Vaibhav Kumar, correct answer, Raiganj. रायगंज में ये बेच देते हैं बचा हुआ अनाज गेहूं को, क्योंकि गेहूं की फसल बहुत ज्यादा होती है. ओके, next, a part of the land area is also devoted to sugar cane, which is harvested once every year. एक पार्ट में, लैंड के एक भाग में और क्या होती है? एक फसल. यस वैभव कुमार, करेक्ट, सुगर केन. ईख,
साल में एक बार शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। और गुड़ को, जैगरी को ये लोग शुगर केन से जो गुड़ बनाते हैं उसको कौन से बाजार में बेचते हैं? इन विच मार्केट दे सेल? ओके वैभव, 1 mark question comes in the examination, that's why I'm telling you, and you have to underline it. You have to prepare 1 mark question from this topic. These are the main points from which you can prepare 1 mark question. Now next, the main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur. Do you have some idea why they are able to grow 3 types of crop in a year? Anyone can send your answer if do you have your books. Do you have? Okay, system Sonali. Well developed system of irrigation. The system of irrigation is very well developed in Palampur. पालमपुर में सिंचाई की बहुत अच्छी सुविधा है। इसके वजह से पानी की कोई कमी नहीं है। जिस जिस समय में जो फसल होता है उस समय उन्हें पानी की मात्रा जो भरपूर मात्रा होती है वो मिल जाती है। वहाँ इरिगेशन सिंचाई की पूरी सुविधा मौजूद है। कैसे मौजूद है? In a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation. Electricity come early to Palampur. बहुत पहले ही इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी पालमपुर गांव में। Its major impact was to transform the system of irrigation, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी से वहां पर बिजली पैदा की जाती है ना। अरे इसकी मदद, बिजली की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से यहाँ पर सिंचाई में इसको लगाया गया। बिजली की मदद से यहाँ सिंचाई की सुविधा सब लोगों को दी गई। पर्सियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स। जब यहाँ पर बिजली के द्वारा नहीं, इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं आया था, ट्यूबवेल्स नहीं चलते थे, तब क्या था? पर्सियन व्हील्स, जो रहट चलता है उसके द्वारा इरिगेशन होता था, कुओं से पानी निकाल के। Used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. छोटे छोटे खेतों को पटाया जाता था। किस व्हील से? यस वैभव कुमार, पर्शियन व्हील। वेल डन, अंडरलाइन कर दीजिएगा। In the previous final exam or term 1 exam, this topic came as a paragraph and student had to answer by searching the paragraph. That's why I'm explaining the whole paragraph in detail. So pay attention towards the topic and understand all important facts. People saw that the electric run tube well could irrigate much larger area of land more efficiently. पहले तो रहट से किया जाता था, पर्शियन व्हील से, लेकिन लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले जो भी ट्यूबवेल्स हैं वो ज्यादा बड़े फील्ड्स को आसानी से सिंचित कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से, पहले से ज्यादा अच्छे ढंग से सिंचाई हो सकती है। The first few tubewells were installed by the government. शुरुआत के पालमपुर में कुछ ट्यूबवेल्स किसने लगाए? Who set up? गवर्नमेंट ने। Okay. Soon, however, farmers started setting up private ट्यूबवेल्स। इसका फायदा देखते हुए किसानों ने प्राइवेट से भी, खुद से भी ट्यूबवेल्स लगाना शुरू कर दिए। ओके, एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970s का क्या रिजल्ट हुआ? 1970 the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. 200 हेक्टेयर एरिया पूरी तरह से सिंचाई किया गया ट्यूबवेल के द्वारा। ओके,
Box is given. Not all villages in India have such a high levels of irrigation. जिस तरह से पालमपुर में इरिगेशन फैसिलिटी है, सब जगह वैसा फैसिलिटी नहीं है. अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, कोस्टल, जो जहाँ मैदानी इलाके हैं, नदियां जहाँ से गुजरती है, उनको छोड़ दिया जाए तो कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड. यानी कि समुद्री किनारा जो भी है, कोस्टल एरियाज है, वहाँ सिंचाई की बहुत अच्छी सुविधा है. In contrast, plateau regions such as the Deccan Plateau have low level of irrigation. कौन से एरिया में, इंडिया के किस एरिया में अच्छे तरीके से सिंचाई की सुविधा नहीं है? Deccan Plateau. Okay, Deccan Plateau. Okay. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. आज भी टोटल जितना भी एरिया है, कितना परसेंट, उससे भी कम, थोड़ा कम, कितना? यस वैभव कुमार, 40% से भी कम में सिंचाई होती है. तो कैसे ये लोग फसल उगाते हैं? In their remaining areas, farming is largely dependent on which? Yes वैभव कुमार, 60% Rainfall. जो कल्टीवेशन है, जो फार्मिंग है, वो रेनफॉल पे डिपेंड है. यस, ओके. नाउ नेक्स्ट इज you have to search from net also the main खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. कोई भी एक क्रॉप आ जाता है, उसमें आपको आएगा लिखने के लिए कि ये कौन सा क्रॉप है, रबी है, खरीफ है. ओके. नाउ डिफरेंट क्रॉप्स यहाँ पे दिया हुआ है. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. Underline this line that एक ही सेम पीस, एक जमीन पे एक से ज्यादा, मोर देन वन क्रॉप, एक ही जमीन पे एक ही साल में फसल उगाने को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. It is known as multiple cropping. Underline and you have to define what is multiple cropping. 1 mark question here. Note down in your notebook as important point. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as. यस राज, लास्ट में क्यों एंटर होते हो? यस राज, what is the need to join the class at last? Huh? It is the most common way of increasing production on a given piece of land. Land एक ही है, कम है, उसमें ज्यादा प्रकार की क्रॉप्स को ग्रो करके हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. Isn't it? It is the way to increasing production by using same piece of land. Multiple cropping. You all understood what is multiple cropping? Yes, ma'am. तो इसके द्वारा हम लोग एक ही लैंड से प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ा सकते हैं. फसलों का उत्पादन एक से ज्यादा हो सकता है एक ही लैंड में, अगर हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे तो. ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. मेन क्रॉप्स में कम से कम ये लोग 2 उपजाते हैं. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. थर्ड क्रॉप कौन सा है पालमपुर का? Yes, ma'am. ज्वार, बाजरा एंड व्हीट के अलावा थर्ड क्रॉप कौन सा है पालमपुर? Potato. पोटैटो. ये कितने दिनों से इसको उपजा रहे हैं? 15 to 20 years. Past 15 to 20 years. Okay. 20 years.
It is important to increase the area under irrigation. Why? It is your question which you have to solve. हमें इरिगेशन एरिया को इंक्रीज क्यों करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा एरिया में, लैंड में सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिए. क्यों इंक्रीज करना चाहिए? ज्यादा, अभी 40% से भी कम है. ज्यादा हम इरिगेशन फैसिलिटी अवेल करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? व्हाट इज द बेनिफिट? The production of crops will increase or not? By increasing the area of irrigation, we can get more production. Yes, Sonali. You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग के द्वारा हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. यस गोविंद शंकर. एग्रीकल्चर, ओके. Our dependency on rain will reduce if we increase the irrigational facility and we can get a good production, large production. Yes. Now, the other way is to use modern farming method. One method is multiple cropping to increase production. The another method is what? दूसरा मेथड क्या है? Ma'am, modern farming. Yes, modern farming method. What do you mean by modern farming method? Huh? Ma'am, high yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. Okay. By using high-tech machines, high-yield seeds, pesticides, etc., we can increase the production of crops. Okay. For that, we required modern machines, high-yield seeds. We are going to study about. Okay. Now the other way is to use modern farming method for higher yield production. Jada. Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. Yield. Okay. उत्पादन. उत्पादन को हम लोग मापते हैं कि पूरे साल में एक जमीन पे जितना उत्पादन हुआ जिस खेत पे. Till the mid 1960s, the seeds used in cultivation were traditional one with relatively low yields. जो ट्रेडिशनली 1960 के पहले तक या 1960 तक जो हम लोग सीड्स बीज का यूज करते थे उससे पैदावार बहुत कम होती थी. यील्ड, पैदावार, प्रोडक्शन बहुत कम होती थी, है ना. ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन. जो ट्रेडिशनल पुराने तरह का जो हमारे बीज होते थे उनके लिए सिंचाई की उतनी आवश्यकता नहीं होती थी. Farmers used cow dung and other natural manure as fertilizers. 1960 के पहले लोग ट्रेडिशनल सीड यूज करते थे. उसको अंडरलाइन कीजिए, यू हैव टू अंडरलाइन दैट. एंड काउ डंग क्या होता है? गोबर का खाद, गाय का गोबर.
अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स, खाद के रूप में ये लोग यूज करते थे। मॉडर्न जो आजकल केमिकली बनता है वो वाला फर्टिलाइजर्स ये यूज नहीं करते थे। ऑल दीज वर readily available with the farmers who did not have to buy them. ये सारा जो पुराना ट्रेडिशनल था, ये परंपरागत रूप से इनके पास मौजूद होता था। गाय का गोबर है ना, उसका खाद, पुराना बीज, ये सब इनके पास रहता था। इनको इसको खरीदना नहीं पड़ता था, ये उसको रखते थे अपने खेतों में डालने के लिए। ओके। The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice using high-yielding variety HYV seeds. Underline what is the full form of HYV seeds? High yielding variety. High yielding varieties. High Seeds. High yielding varieties seeds. Okay. Now 1960 तक हम लोग परंपरागत रूप से खेती करते थे, जिससे कि पैदावार यील्डिंग बहुत लेस थी, कम थी। 1960s में हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। हम लोगों ने क्या, हमारे किसानों ने क्या यूज करना शुरू किया 1960s के बाद? yielding variety HYV गेहूं और चावल की खेती के लिए HYV सीड्स यूज करना शुरू किया। Compared to the traditional seed, the HYV seeds promised to produce much greater amounts of grain on a single plant. Yes, HYV सब लोग याद कर लीजिएगा। तो जब इन लोगों ने HYV सीड्स यूज करना शुरू किया, तो जो ट्रेडिशनली यूज किया हुआ सीड से जितना यील्डिंग होता था, पैदावार होता था, उससे बहुत ज्यादा एक ही प्लांट में बहुत अधिक फसल पैदावार ज्यादा हुई। ओके। Same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. अब पहले से जो ज्यादा था उससे बहुत ज्यादा इसका पैदावार बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, ज्यादा पैदावार HYV सीड्स करने का। लेकिन ये फसल तो बहुत ज्यादा हाई यील्डिंग ये है, प्रोड्यूसर है HYV सीड, लेकिन इसके कुछ क्या है, इसकी कुछ कमियां हैं। उस कमियों को देखेंगे। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा इसमें पानी चाहिए, एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। सिर्फ HYV सीड्स डाल देने से नहीं होगा, उसमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक खाद भी डालना होता है। ओके क्लास। तो बहुत ज्यादा इसमें सिंचाई के लिए पानी ज्यादा चाहिए, और केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट देने के लिए। हायर yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticides, etc. Are you getting class? मॉडर्न फार्मिंग के लिए क्या क्या जरूरी हो गया? HYV सीड जब यूज करेंगे तो HYV seed, irrigation, chemical fertilizers, pesticide, etc. HYV सीड के साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटी भी चाहिए। बिना पानी के, ज्यादा पानी के ये फसल पैदावार नहीं देगी। केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक खाद नहीं रहेंगे तो अच्छी फसल नहीं होगी। और पेस्टिसाइड, कीटनाशक भी होना जरूरी है। ओके। Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. 1960s में जब
ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई? Which states were the first to use this modern method of farming? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. Western Uttar Pradesh. You have to learn the names. 1 mark question. It is. You must learn that you have to name the state which started using modern farming method in India. सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या देखे? पंजाब एंड हरियाणा. उसके बाद उत्तर प्रदेश. पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. ओके. The farmers in these regions set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. खेती के लिए इन लोगों ने जो जो चाहिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड में वो यूज करना शुरू किया, जैसे कि HYV सीड, इरिगेशन फैसिलिटी, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स. With the help of these, they started modern farming in their areas in Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. Okay, class? Some of them brought farm machinery like tractors and threshers, which made plugging and harvesting faster. इनमें से इन खेतों में क्या तेजी से ज्यादा खेतों को में से फसल काटने के लिए और खेतों को कोड़ने के लिए ट्रैक्टर और क्या चीज ले आए? थ्रेशर्स. थ्रेसिंग मशीन जानते हैं, जिससे फसल से भूसा निकल जाता है, फसल की कटाई हो जाती है. थ्रेसिंग मशीन बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोगों के गांव में होगा भी. ट्रैक्टर जानते होंगे, बोने के लिए, काटने के लिए ये फास्टर स्पीड से काम करते हैं. ओके. They were rewarded with high yield of wheat. इसके साथ इन लोगों को क्या हुआ? क्योंकि बहुत सारा इन लोगों को प्रोडक्शन मिला, इसके यूज करने से आसानी से काम होने लगा. In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. पहले ट्रेडिशनली कितना होता था? जब हम ओल्ड फार्मिंग मेथड जब यूज करते थे तो केजी पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 1300 kg पर हेक्टेयर होता था. ओके. The yield went up to with the HYV seed. जब ये लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड से करने लगे तब ये कितना बढ़ गया प्रोडक्शन, यील्डिंग, पैदावार कितनी बढ़ गई? 3200 kg per hectare. 3200 kg पर हेक्टेयर. 1300 से माइनस करके बताइए कितना ज्यादा पैदावार इन लोगों को मिलने लगा? 900 kg per hectare. हैं? You're taking too long time. Ma'am, 1900. Yes. Correct. There was a large, कितना ज्यादा बढ़ गया? कई गुना बढ़ गया, 3 गुना से भी ज्यादा. There was a large increase in the production of wheat. गेहूं की पैदावार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the market. अब इनके पास बाजार में बेचने के लिए कितना पैदावार बच गया? पहले से ज्यादा या पहले से कम? मैम ज्यादा. मैम. ओके, बहुत ज्यादा, पहले से काफी बच गया. अब डिस्कस करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड. मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या अंतर है?
Anyone? We just understand that what is multiple cropping and what is modern farming method. The main difference between these two. Anyone? Tomorrow we will discuss about all these questions. You please prepare and learn. Okay. Suggested activities and let's discuss. And next topic will be discussed tomorrow. Okay, class? Okay, ma'am. Get ready with all these points.